Hello everyone. Hello Amrita. Hello Mridul. Hello Kunal. Hello everyone. So here, Sat Sri Akal, Gurpreet ji. Today we will do puzzles. Yes, reasoning. It is reasoning topic. ठीक है. You have to work on the information. I write here. साथ के साथ प्रोसेस करना इन्फॉर्मेशन को. Ravi and Kunal are good in hockey. And volleyball. साथ के साथ टेबल बना लेना. Sachin and Ravi are good in hockey and baseball. Next is Gaurav and Kunal. This is Sachin and Ravi. ठीक है. This is Gaurav and Kunal are good in cricket and volleyball. Next is Sachin, Gaurav, and Mohit are good in football and baseball. Take your time, just process all this information. I can ask you any question. Hello, Gaurav. ठीक है. They give this type of information and they ask questions. आपको कुछ नहीं करना, information को process करना है. Try to make only one table. Done. If any one of you process this question, ready for the question, you can say yes in comment, then I ask question. Okay. My question number 1. Who is good in hockey, cricket, and volleyball? Yes, Kunal is the answer. Next is question number 2.
Who is good in baseball, cricket, volleyball, and football? Okay, Gaurav is the answer. किसी को नहीं समझ में आ रहा, यू कैन आस्क मी. आपने कुछ नहीं इन पे प्रोसेस करना है. या तो इनके नाम लिख लो, रवि, कुणाल, सचिन, गौरव, सचिन, मोहित. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. हु इज गुड इन बेसबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी? अमृता एंड गौरव is saying Kunal, Kunal is saying Ravi. Question is who is good in baseball, volleyball, hockey? इसी के ऊपर है ना, यही इन्हीं में. Yes, Ravi is the answer. I take one more case set, then we will change the type. Next है K, G and H are intelligent. K, R, J are hardworking. R, H, J are honest. K, G, J are ambitious. Take your time. Done. Which of the following person is neither hardworking nor ambitious? H. Next is question number 2. Which of the following person is neither honest nor hardworking but is ambitious? Yes, G is the answer. Hardworking और honest नहीं है but ambitious है G.
Okay. Next is type 2 question. 9 cricket fans are watching a match. Seated in a row. They are J, K, L, M, N, O, P, Q, and R. L is at the right of M, and at third place at the right of N. K is at one end of the row. Q is seated adjacent to both O and P. O is at the third place at the left of K. J is right next to the left of O. Take your time. Work on this information. Done. Okay. It is coming N, R, M, L, J, O, Q, P, K. भाई क्वेश्चन नंबर 1, अगर किसी और का कुछ और आ रहा है यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूं फटाफट. हु इज सीटेड, एक ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं. हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो. जे, कुणाल, अमृता. ओके, सबका क्वेश्चन हो गया. ठीक है, तो हियर नो नीड टू एक्सप्लेन दिस. फाइन. कैन आई चेंज द स्लाइड?
I ask you a question on circular arrangement. अमृता तुम्हारा ये आया नहीं क्या? What is your pattern? Just share your photo खींच के share कर दो. We will see where you have done mistake. In the meanwhile, I ask other question. Amrita, I will tell you later on. ठीक है, बाद में हम देख. इसमें क्या हो गया हमारा? NMLR की दिक्कत है. JOQ उल्टा कर दिया ये. JOQ के ठीक था. ये देखो, J is right next to the left of O. J जो है वो O के लेफ्ट में है. तुमने J O के राइट में लिया है. This is the last statement where you have done mistake. Okay. Now next. A, B, C, D, E, F, and G are sitting around a circle and are facing the center. G is second to the left of C. Who is to the immediate left of F. A is third to the left of E. B is between D and E. Take your time. Try to solve this. You made the pattern, Nipun. Done. काजल, मुझे तुम्हारे वाले में कुछ इशू लग रहा है. Question I ask in next slide. Now the question here is, who is left of G? आंसर डी है. मैं 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, फिर देखते हैं किसका क्या क्या गलत है. Who is right of E? Who is right of A? ठीक है, यही पैटर्न है. काजल, पैटर्न इसमें ये है. अगर मैं यहाँ पे डी लेता हूं, दिस इज जी, दिस इज ए, सी,
F E B. This is the pattern. Okay. Now next question. 7 children A B C D E F and G are standing in a line. G is to the right of D and to the left of B. A is on the right of C. A and D have one child between them. A and B have two children between them. D and F have two children between them. Question number 1. Who is exactly in the middle? Next is okay. Okay, Amrita, take time. नहीं अमृता, फर्स्ट का आंसर डी है. डी मिडल में है. It is given A and D have one child, E and B has two child, T and F has two child. Where you have done mistake, I don't know. तुम्हारा तो यही गलत हो गया. D and F have two children. ये तो ठीक है, हाँ सही है. पहली स्टेटमेंट में कहीं गलती की है तो तुमने.
ये तो सही है, डी जी बी। G is to the right of D, to the left of B. A is on the right of C. ये A is on the right of C. ये A is on the right of C. ये गड़बड़ है. Okay. Now next. 6 friends A, B, C, D, E, and F are sitting in a row facing towards north. C is sitting between A and E. D is not at the end. B is sitting immediate right of E. F is not at the right end. डी रह गया रजत तुम्हारा. काजल करना कुछ नहीं है इसमें, देखो क्या लिखा हुआ है. सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई. डी इज नॉट एट द एंड. बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई. ई के राइट में बी. अब सी यहाँ हो नहीं सकता. सी ए और ई के बीच में ये हो गया. डी एंड पे नहीं है. एफ इज नॉट एट द राइट एंड. ठीक है, तो एफ यहाँ पे हो गया. डी कोई से भी एंड पे नहीं है, तो डी यहाँ पे बच गया. इसमें ऐसे लेना है 6 प्लेस. पहले बी की पोजीशन पता चलेगी, फिर इन 3 की, और फिर डी जो है यहाँ नहीं हो सकता, डी यहाँ नहीं हो सकता, तो डी यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सबका. राइट यस इन कमेंट इफ यू हैव डन दिस. ओके. नाउ हियर next question here is A, B, C, D, E, F, and G are sitting on a wall, and all of them are facing east. Be careful, okay? C is on the immediate right of D. B is at an extreme end and has E as his neighbor. G is between
E and F. D is sitting third from the south end. Take your time. And these are the last question for the day. ठीक है. Almost our syllabus is over. कुणाल अगर कोई टॉपिक बचाओ तो let me know, tomorrow I will take. बट मेरे अकॉर्डिंग जो सी सेट का सिलेबस है वो हो चुका है. मुझे मैसेज कर देना. यू कैन मेल मी अप. नहीं तो कल वी विल डू सिलोलिज्म. आई डोंट टेक सिलोलिज्म. इंग्लिश टीचर का पार्ट है, सो आई नेवर टीच सिलोलिज्म, क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन. So other than this three area, you can ask me if any topic left. Tomorrow we will discuss some question from the UPSC. ठीक है, यूपीएससी के ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कल. यस, नोट्स आई एम वर्किंग ऑन इट बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यू. मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ. आई विल ठीक है. ऑल्दो डॉक्टर रिकमेंडेड नॉट टू टेक क्लासेस, बट आई हैव टू फिनिश इट अप, सो दैट्स व्हाई आई विल शेयर नोट्स. डोंट वरी गाइस. जिसकी ईमेल आईडी मेरे पास आई हुई है. डन. ओके. माई ईमेल आईडी लिख लो. अमित गर्ग .maths maths@gmail.com. ठीक है. मेरा क्वेश्चन है अब आपसे. क्वेश्चन नंबर 1. हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई? All of you G answer. So now next question number 2, then we conclude. Okay guys, do revise. कल देख लेंगे हम यूपीएससी के क्वेश्चन. कोई टॉपिक बचा हो तो I will take, otherwise we will discuss 2019 यूपीएससी पेपर. ठीक है. हाँ कुणाल, you can ask your doubt. One more question. Who are the sitting on extremes end? एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन बैठा हुआ है? बी एंड ए. ओके. गुरप्रीत का आंसर बी एंड एच है. बी एंड ए. गुरप्रीत क्रॉस चेक. इट इज ए नॉट एच. एच नहीं एक्सट्रीम एंड पे. ओके फाइन. हाँ कुणाल, यू कैन आस्क मी योर डाउट. गाइस नाउ इट इज ओके. अगर कोई टॉपिक बचा होगा आई विल टेक टुमारो वी हैव टू सेशन 9 o'clock and 10:30 10:35. So I will try to discuss UPSC 2019 questions. Okay. Any doubt you can ask me. कोई भी जनरल डाउट है? The sum of all 4-digit number obtained by using digit 1 2 3 4 is. अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पहली बार देखा. या तो सारे नंबर निकाल लेंगे हम, बट वो नंबर तो हमारे 4 4 4 4 256 नंबर है ऐसे हमारे पास. एलिमिनेशन से हो सकता है 60,000 66,000.
फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन दिस क्वेश्चन? नहीं, नंबर सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछता है। फ्रॉम विच बुक यू हैव टेकन कुणाल? ऑनलाइन। ऑनलाइन में कहां से? नहीं, दिस इज नेवर आस्क इन सी सेट, यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है ये। थोड़ा सा कैट लेवल क्वेश्चन है। लेट मी थिंक अबाउट दिस कि कुछ समझ में आ रहा है। आई विल ट्राई, कल देखते हैं अगर कुछ होगा इसका। बट ऑन इट फेस अगर एग्जाम में पूछे तो आई रिकमेंड कि मैं तो छोड़ूंगा इसको, क्योंकि मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। सम ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर ऑब्टेन बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 एंड हियर रिपीटिशन इज अलाउड। नंबर वो ये 1 1 1 भी हो सकता है, 2 2 2 2 भी हो सकता है, 1 2 2 भी हो सकता है, 1 3 1 3 भी हो सकता है। कुछ तो इसमें कंसेप्ट होगा। तो ये तो ठीक है ना। एज टू बी, स्पीड जो है, तो ये 10% लेस टाइम लेता है। अगर ये 100% ले रहा है, बी 90% लेगा। 100% 90%, तो उनका रेशियो 10:9 हो गया टाइम का। टाइम एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड हो जाएगा 9:10। इफ ए 9, बी की स्पीड होगी 10 km/h, बट इट इज आस्क्ड मीटर पर सेकंड, तो 10 km/h को यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर पर सेकंड। 5/18, 50/18, 25/9। A is the answer. Speed of B is 10 km/h. Yes. Okay. Okay, guys. So we stop here. बाकी कल देखेंगे कुणाल, यू कैन मेल मी। ठीक है, अगर कोई टॉपिक तुम्हें लग रहा है बचा हुआ है। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है 6 तारीख को। इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड इज doing course on this Unacademy Plus, willing to see CSET, can join that. Okay, okay, Amrita. There is no process to rent out the mind. See, it has been experience. ये experience है बस, और कुछ नहीं। But you have improved a lot. अमृता, जो तुम्हारा लेवल पहले था जब हमने एनसीईआरटी का बेसिक कोर्स किया था, एंड राइट नाउ यू आर बिट कॉन्फिडेंट। ठीक है, हो जाएगा। तो यू कैन डू रिवीजन विद दैट कोर्स। अब हम सीसेट करेंगे, उसके साथ आप लोग रिवाइज भी कर सकते हो। फॉर यू पीपल दैट विल बी अ रिवीजन पार्ट। क्वेश्चन चेंज रहेंगे, ठीक है। इट विल नॉट बी एग्जैक्टली सेम। हाँ, वो सेम नहीं रहेगा। देखो मैं ना, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं जो पिछले वाले वही रिपीट करूंगा, तो दैट विल बी न्यू। बिल्कुल, मतलब टॉपिक वही है, बट आई विल टीच इन डिफरेंट वे। टॉपिक आगे पीछे भी हो सकते हैं उसमें, नॉट इन द सेम सीक्वेंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट। ओके गाइस, यस, गुड। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो। I will use Kunal, I will use. Okay, okay guys, take care, bye bye, see you tomorrow. Good night. Yes, I have to take care because my throat is really bad. Yes. Earlier I used to take classes for 7.5 hours. That is like offline, जिसमें चिल्लाना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है. Now because of throat, I cannot speak. I'm taking Strepsils, Honeytas, cough syrup, gargle, clove, everything.